Hello dear student friends, how are you? Dear friends, last time we have started talking about the microorganisms, friends and foe. Yes, there is a very big world of the microorganism beyond our vision, and with the discovery of instruments like microscope, slowly and gradually we have realized the great world of this different types of microorganisms. Friends, last time we have studied that these microorganisms definitely are useful to the human being as well as some of them are harmful to us. But being a very intelligent species on this earth, the man has utilized the applications of this microorganism for various purposes. In that context, last time we have studied how microorganisms are commercially used in the production of lactic acid, in the production of curd and various milk products. That was a Lactobacillus acidophilus. It is a bacterium naturally occurs in milk. Today we are going to learn one more interesting commercial application of the microorganism, and that has changed the era in the field of medicine and has saved the lives of many wounded soldiers during the Second World War. And that chemical extracted from one kind of microorganism by Alexander Fleming was named as wonder drug. Why? Because that drug has saved the lives of thousands and thousands of wounded soldiers which are wounded due to some injuries during the war, and that drug was called as antibiotic. Actually, the word anti means against, biotic means living organism. So the chemical substance produced by one kind of microorganism and that is against the other kind of microorganism. Okay, that's the word we actually it is derived from the Latin word. You can see in this diagram a beautifully green colored structure, okay, which is growing as a this agar, this is we called as agar plate. It is a petri dish, and in this petri dish there is a medium. It is called as a medium, growth medium it is called. And on this growth medium you can see that this penicillium has grown wonderfully. Now if we observe this penicillium under a microscope, as I on that day told you, it looks like a brush, and because in Latin there is a word penicillin, therefore the word comes penicillium. So this Alexander Fleming, actually I would like to share you a very wonderful and interesting story that how the discoveries that occurs, the great discoveries that change the faces of the world. He was actually studying the Staphylococcus, a kind of bacterium that grows on our skin, and whenever some injury occurs, you know that in that injury some pus forms. This formation of pus is due to this Staphylococcus. So this Alexander Fleming grown the complete petri plate with this growth of microorganism everywhere, okay, everywhere, and uniform growth of that Staphylococcus was there. Actually after 2-3 days, when he forgot the petri plate to wash, while washing one of the plate he observed that in the center there is some growth of this type of microorganism, and around that microorganism, that means that growth, there is no growth of Staphylococcus. So there was a clear zone of inhibition. So he wondered, he thought that why it has happened, why near this one microorganism other microorganism do not grow, why it has found the territory. And this question led to his inquiry and find under the microscope that this microorganism which was grown in the center and not allowed the other organism Staphylococcus to grow nearby, it was a Penicillium notatum. That was a kind of fungus, Penicillium notatum. Slowly and gradually they have realized that Penicillium notatum secrete a kind of substance, okay, that substance do not allow other microorganisms to grow nearby that penicillium. So why this happens? Because these microorganisms compete for food, for space, for water, for minerals, and therefore in order to have a competition with other, it secrete a chemical
Okay, and that chemical, when it was extracted by Alexander Fleming, Chen and Flore, these three scientists have purified that chemical substance, and that was named as penicillin, the first ever discovered antibiotic, which was then administered to various ill, sick and wounded soldier, and surprisingly they survived and they did not died, and so that's what we have to understand, friends, the story of the discovery of the penicillin from the Penicillium notatum. After that discovery, you will come to know that thousands, hundreds and thousands of different types of chemicals have been discovered from various kinds of microorganisms like bacteria, like fungi, like actinomycetes, and all these antibiotics are now very useful against various deadly diseases around us. Okay, so what is antibiotic then? Antibiotic is a substance that is secreted by one kind of microorganism and that kills or stops the growth of other microorganism or bacteria or fungi, that we called as antibiotic. It was Alexander Fleming in the 1929 discovered the first antibiotic penicillin. During his experiment, Alexander observed that bacteria did not grow on culture where the fungus Penicillium notatum was present. Thus, penicillin was prepared from a fungus Penicillium. Penicillin made it possible to treat many difficult diseases, and after that most modern antibiotics were also derived from the penicillin. They are amphoxicillin, cefotaxamine, cefoperazone, cefoxamine, and so and so and so. Beside that, some other antibiotics like tetracycline, norfloxacin, ciprofloxacin, doxycycline, and so many others have been discovered by the scientists, extracted from different types of microorganisms. So that was very wonderful story of the antibiotic, and so we have successfully produced the antibiotic from either fungus or bacteria or actinomycetes, and these antibiotics are lethal against the diseases. Therefore, they are used as one of the method of treatment to treat the diseases. Then there is another important and interesting chemical substance that often being used in the treatment in our day-to-day life, and that is called as vaccine. Have you heard the word about vaccine? आपने शब्द सुना है वैक्सीन का? So what is vaccine? I will explain. It was in the 1798. Imagine 1798, 1898, 1998, okay, and 2000. How much year has been passed from this great discovery being done by Edward Jenner? He observed that some people who are rearing the cows and milking them, they are called as milkmaids. हम हमारे भाषा में कहेंगे गौली, जो गायों को पालते हैं, उनका दूध निकालते हैं. एडवर्ड जेनर ने देखा कि उन लोगों को स्मॉल पॉक्स, मतलब चेचक हिंदी में कहते हैं उसे, या फिर उसे कहते हैं देवीचा रोग. It was called as smallpox. About 30 years back in our country, it was causing a havoc. Once the smallpox occurs, most of the people used to die. अगर नहीं मर गए तो उनके शरीर पे, चेहरे पे इस तरह के परमानेंट खड्डे गिर जाते थे कि उनका चेहरा पूरी तरह से विद्रूप हो जाता था, कुरूप हो जाता था, और दैट वाज देयर फॉर ए डेडली डिसीज. लेकिन उसने देखा कि ये जो काऊ को रियर करने वाले गौली हैं, ये लोगों को स्मॉल पॉक्स नहीं होता. क्यों? क्योंकि उनको कभी तो जिंदगी में काऊ पॉक्स नाम का स्मॉल पॉक्स की जैसा ही पर माइल्ड बीमारी आजार होता है और वो उससे ठीक हो जाते हैं. पर चूंकि उनको एक बार काऊ पॉक्स हो गया तो उनमें रेजिस्टेंस पैदा होता है, और उस रेजिस्टेंस से फिर स्मॉल पॉक्स के भी वायरसेस उनके बॉडी में अगर जाते हैं तो उनके अंदर वो डिसीज नहीं बनाते. दिस ऑब्जर्वेशन लेड टू द डिस्कवरी ऑफ ए केमिकल सब्सटेंस दैट वी कॉल्ड वैक्सीन. इस निरीक्षण से वो नतीजे पे आया कि अगर हमको किसी विशेष डिसीज का एक बार संसर्ग होता है तो दूसरे बार वो नहीं होता, दूसरे ऑर्गेनिज्म का भी संसर्ग नहीं होता.
इसका क्या कारण होगा? इसका कारण यह है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर में उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ लड़ने वाले ऐसे इम्यूनोग्लोबुलिन बनाते हैं जिसे हम कहते हैं एंटीबॉडीज, है ना। ऐसे WBC बनाते हैं जिसको हम कहते हैं लिम्फोसाइट्स। ये एंटीबॉडीज और लिम्फोसाइट्स, मेमोरी लिम्फोसाइट्स कहते हैं उसको, मेमोरी टी सेल्स बोलते हैं उसको। तो ये सेल्स परमानेंटली हमारे बॉडी में कुछ पैमाने पे, कुछ प्रमाण में कायम रहते हैं, और कभी उसके बाद में जिंदगी में फिर से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर हमें इन्फेक्ट करने की कोशिश करता है तो वो मेमोरी सेल और एंटीबॉडीज उसको हमारे शरीर में पनपने नहीं देते, उसको बढ़ने नहीं देते, और फिर हम उसके वजह से उस बीमारी से दूसरे बार बीमार नहीं होते। सो दैट वाज अ प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द वैक्सीन। तो फिर ये वैक्सीन कैसे बनाते हैं? ओके, आवर बॉडी इज नेचुरली having ability to fight the diseases, or this defense mechanism of our body produces antibiotics to fight a disease causing microorganism which enter in our body through various routes. While doing so, the body remembers the fight to fight any future onslaught of that microorganism, because as I told you that our body produce memory lymphocyte. Okay, they are called T memory cells. Similarly, some kind of antibodies remain in our blood for longer period of time, and this concept was utilized to make the vaccine. So what is vaccine? If I define vaccine, it is actually a mixture of either weak or killed strains of disease causing microorganism. इसका मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल, हमने ट्यूबरकुलोसिस के लिए जो पहले दिन वैक्सीन ली उसका नाम था BCG। BCG का मतलब है बैसिलस कामेट गुआरिन। जो हमें ट्यूबरकुलोसिस बनाता है उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। उस बैक्टीरियम का वैक्सीन दो साइंटिस्ट ने ढूंढा, उनका नाम था कामेट एंड गुआरिन, देयरफॉर उस वैक्सीन का नाम हमने रख दिया BCG। दिस वैक्सीन इज गिवन अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस। वो देने से हमें ट्यूबरकुलोसिस, TB बाद में नहीं होता। तो वो क्या है वैक्सीन? वो वैक्सीन है उसी बैक्टीरिया का सस्पेंशन, पर उस बैक्टीरिया को हमने वीक कर दिया, उसको कहते हैं एटीन्यूएशन। उसको केमिकली बाय हीट ट्रीटमेंट उसकी डिसीज बनाने की क्षमता को, उसको कहते हैं पैथोजेनिसिटी को खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया। लेकिन एंटीजेनिसिटी को, मतलब हमारे शरीर में जाने के बाद में हमारे डिफेंस मैकेनिज्म को खुजाने वाली, उसको इंड्यूस करने वाले मैकेनिज्म को बरकरार रखा। मतलब उसके हाथ में भाला तो दिया, पर भाला का ऊपर का टोक तोड़ दिया, अब वो डिसीज नहीं बना सकता। पर हमारे डिफेंस मैकेनिज्म को क्या दिख रहा है कि बाहर का कोई आया है, उसके हाथ में भाला है, तो चलो भाई उसके खिलाफ लड़ने वाले एंटीबॉडीज बनाओ और WBC बनाओ। सो दैट्स व्हाट द वैक्सीन। तो वैक्सीन इस तरह का सस्पेंशन है कि जिसके अंदर या तो जिंदा लेकिन वीक, या फिर मृत, डेड, किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो हमारे शरीर में इंजेक्ट करने के बाद हमारी शरीर मिमिक तरीके से, मतलब वो फुल हो जाती है हमारे बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म। उसको लगता है अरे बाहर के शत्रु आ गए, पूरे शत्रु तो ऐसे है वो तो आधे मरे हुए हैं, या तो डिसीज बना ही नहीं सकते, या वो मरे भी है, पूरे मरे हुए हैं। पर हमारी बॉडी उसके खिलाफ लड़ने वाले एंटीबॉडीज को रैपिडली बनाती है, उसके खिलाफ लड़ने वाले WBC को बनाती है। एंड दिस इज द रीजन दैट आवर बॉडी डेवलप्स the antibodies and they remain there in our body for longer period of time, and therefore we develop a resistance against these types of disease. अगर ट्यूबरकुलोसिस के लिए मैंने BCG ली है तो कुछ दिनों तक, कुछ सालों तक मेरे शरीर के अंदर उसके खिलाफ लड़ने वाले एंटीबॉडीज बने रहेंगे, और ये वो फिर कभी कभार कुछ माइक्रोब्स मेरे शरीर में जा भी जाते हैं, माइक्रोब्स बैक्टीरिया के, ट्यूबरकुलोसिस के, तो उसको खिलाफ, उसको खत्म करने वाले एंटीबॉडीज उसको खत्म कर देते। तो वी डोंट गेट दैट। सो द वैक्सीनेशन इज ए प्रिवेंटिव अगेंस्ट ए पर्टिकुलर डिसीज। एंटीबायोटिक्स कब देते हैं? डिसीज होने के बाद। लेकिन वैक्सीन सब कब देते हैं? कब देते हैं? डिसीज होने के पहले या डिसीज न होने के लिए। ओके, इट्स कॉल्ड एज प्रोफिलैक्टिक ट्रीटमेंट। प्रोफिलैक्सिस का मतलब है जो हम बीमार होने से बचने के लिए करने वाली जो सारी बातें, उसको हम प्रोफिलैक्सिस कहते हैं साइंटिफिक भाषा में। So this is all about the vaccine, and vaccines are now available for many diseases, जैसे कि स्मॉल पॉक्स है जो तो हमने ख़त्म ही कर दिया, उसके बाद में ट्यूबरकुलोसिस है, पोलियो भी है, आपने देखा होगा, टिटैनस है, डिफ्थेरिया है, व्होपिंग कफ है, हिपेटाइटिस है,
आपने डीपीटी के 3 टीके ये शब्द सुना होगा, डिप्थीरिया, पर्टूसस एंड टिटेनस, है ना। ये तीनों बीमारियां उसके अंदर आ जाती है, कवर हो जाती है। उसके बाद में हमने और कुछ इंटरेस्टिंग बातें सीखी। देखो मैं आपके सामने यहाँ पर चित्र दिखा रहा हूँ, क्या देख रहे हो ये फेमस व्यक्ति को? मुझे मालूम है आप उसको डेफिनेटली पहचानेंगे। वही वो कौन बनेगा करोड़पति का हमारा कलाकार जो हमें सवाल पूछता है। तो ये है अमिताभ बच्चन और उसकी बहुत सुंदर से एडवर्टाइजमेंट आपने देखी होंगी, 2 बूंद जिंदगी की। केवल हम 2 बूंद बच्चों को पिलाएंगे मुंह से, इसको कहते हैं ओरल वैक्सीन, और दैट वैक्सीन वॉज गिवन फॉर पोलियो, अगेंस्ट पोलियो। WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया के उन सारे बड़े आबादी वाले देशों के बच्चों को बचाने के लिए ये मुहिम चलाई, उसका नाम था पल्स पोलियो। ओके, और इस मुहिम से अभी धीरे धीरे हमने हमारे देश से अपंग बच्चों को अपंग बनाने वाले इस पोलियो का भी इरेडिकेशन किया है। जैसे हमने स्मॉल पॉक्स का इरेडिकेशन किया है, अभी हम दुनिया से पोलियो का भी इरेडिकेशन करेंगे। उसके लिए जो वैक्सीन बनाई जाती है वो ओरल वैक्सीन है। इसके 2 या 3 या 4 डोजेस दिए जाते हैं। आपको मालूम है एक पर्टिकुलर संडे आता है, उस दिन ये जो आशा वर्कर है या जो हमारे डॉक्टर्स है ये आपके बच्चों को देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे देश के राष्ट्रपति माननीय श्री कोविंद जी अब एक बच्चे को इस ओरल डोज का डोज दे रहे हैं और ये शुरुआत कर रहे हैं मुहिम की। तो इस तरह से हमारे देश में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल कर हम पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम बनाते हैं। इसको कहते हैं इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन, ओके, टू गिव डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन, ओके, टू द चिल्ड्रन। और हमारे देश में 0 एज से लेकर, मतलब जब बच्चा पैदा होता उसके पहले दिन हम BCG का एक वैक्सीन देते हैं और उसके बाद में फिर अलग अलग टीके एक अंतराल के बाद में एक जिसको कहते हैं प्लानिंग से एक टाइम टेबल के मुताबिक बच्चों को देते हैं लगभग 5 सालों तक। उसके बाद में फिर वो बूस्टर डोज देते हैं ताकि ज़िंदगी भर वो बच्चे उस तरह की बीमारियों से बचे रहें। ओके, पोलियो के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि इट्स अ वायरल डिसीज विच डैमेज द नर्व्स इन द स्पाइन। इसके वजह से क्या होता है, वीक मसल हो जाते हैं, फिर पैरालिसिस हो जाता है, पर्टिकुलरली पैरों में। आपने देखे होंगे बहुत से लोग एक पैर उनका लूला होता है ना, वो उसी के वजह से होता है। पोलियो इज ऑल्सो कॉल्ड इन्फंटाइल पैरालिसिस, बच्चों में होने वाला पैरालिसिस। पोलियो वैक्सीन कैन प्रिवेंट दिस डिसीज। अगर हम ये वैक्सीन देते हैं तो अपने बच्चों को डिसीज नहीं होगा। Pulse polio is a large-scale program to eradicate polio from India as well as from country. This program is being run by United Nations, UN जिसको कहते हैं, हमारी सारे राष्ट्रों की संगठन होती है ना, उसको कहते हैं United Nations. Okay. In coordination with the government of India, all children under 5 years of age are given polio drops under this program. Pulse polio has been highly successful against इरेडिकेशन ऑफ पोलियो, और पोलियो को ख़त्म करने में ये प्रोग्राम बड़ा ही सक्सेसफुल रहा है क्योंकि इसको इनिशिएट करने में कोविंद जैसे राष्ट्रपति और सुपरस्टार जो लोगों में लोकप्रिय होते हैं ऐसे लोग आह्वान करते हैं और फिर वो बच्चों को पिलाया जाता है। ये मुफ्त है और हमारे वर्ल्ड को टुगेदर वी विल मेक द वर्ल्ड पोलियो फ्री, इस तरह से स्लोगन को लेके हम लोग इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल माइक्रोबियल डिसीज को खत्म करने के लिए करते हैं। हाउ इजंट इट वंडरफुल दैट हाउ दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंडली टुवर्ड्स। लेकिन हमने क्या किया, उन्हीं माइक्रोब्स का इस्तेमाल उसको किल करके या उसको आधा किल करके या उसके शरीर से निकाले हुए कोई केमिकल का इस्तेमाल कर हम वैक्सीन बनाते हैं। तो हमारे पास अभी ढेरों डिसीज़ के वैक्सीन है। आपके स्कूलों में पिछले सालों में आपने देखा होगा कि MMR के जो वैक्सीन दिए गए ना, दे आर मिजल्स, देन मम्स एंड रूबेला। तो ये तीनों वायरल डिसीजेस है और उनके खिलाफ हमने एक तंदुरुस्ती इम्यूनाइजेशन पाई है। अब पूरा दुनिया भी कोरोना के खिलाफ वैक्सीन के लिए लड़ रहा है। मतलब अगर वैक्सीन बनती है तो आप देखो इतनी आसानी से वैक्सीन नहीं बनती। इट्स अ ग्रेट डिस्कवरी। उसके लिए ट्रायल्स होते हैं, पहले एनिमल्स पे ट्रायल किए जाते हैं, फिर ह्यूमन पे ट्रायल किए जाते हैं, फिर अलग अलग जगह किए जाते हैं और फिर जब सक्सेसफुल रिजल्ट आता है तब जाके वो वैक्सीन दुनिया के लिए रिलीज़ होता है। तो इसके अंदर हज़ारों करोड़ रुपए साइंटिस्ट को दिए जाते हैं, वो लेबोरेटरीज दी जाती है। दैट्स वाई वी हैव टू पे समथिंग फॉर दैट। तो ये सारी बातों को हमको समझना है। ओके, तो वी विल गेट डेफिनेटली वैक्सीन अगेंस्ट कोरोना। एट दैट टाइम हम लोग वैक्सीन लेंगे तो हम थोड़ा बचे रहेंगे उससे, ठीक है। फिलहाल अभी हम कोरोना से लड़ने के लिए प्रोफिलैक्टिक ट्रीटमेंट के बजाय प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट है ना, जिसको हम कहेंगे, वो इस्तेमाल करेंगे कोरोना से बचने के लिए। कम से कम लोगों में हम मिक्स होंगे इन दिनों में, कम से कम जिसको कहते हैं एक्सपोजर हम खुद को करेंगे।
भीड़ भाड़ वाली जगह नहीं जाएंगे, जहाँ जाएंगे 2-4 दोस्तों में तो डेफिनेटली कोई फिजिकल डिस्टेंस रखेंगे, मुंह पे अच्छा वाला मास्क लगाएंगे जो बार बार साफ करते हैं, हाथों को बार बार धोंगे, है ना, आँखों को, शरीर को बार बार साफ करेंगे और जितना हो सके खुद को बचाएंगे। ओके, तो यही हम हमारे एजुकेशन से सीखते हैं। अभी आगे और एक इंटरेस्टिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको दिखाऊंगा मैं कि जो हमारे सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। आपको मालूम है हमारे जो सॉइल है जिससे हम क्रॉप लेते हैं, बड़े पैमाने पे प्रोडक्शन करते हैं, उस सॉइल का हर साल हमने क्रॉप करने की वजह से उसके अंदर के प्लांट के ग्रोथ के लिए लगने वाले ऑल द न्यूट्रिएंट्स नीडेड फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड द बेटर yield of the crop, they are extracted year by year. And therefore, the fertility of the soil, it means the nutrient content of the soil, they decrease. Okay, so what we have to do then? We have to add either chemical fertilizer which are very costly and they are also hazardous, they are responsible for pollution, or we have to add manures. Okay, these manures are prepared from the plant and animals मटेरियल, डेड मटेरियल्स। ओके, एनिमल्स का जो एक्सक्रीटा होता है ना, डंग होता है, उससे हम बनाते हैं। पर ये सारों की एक अपनी मर्यादा है, उसका उपलब्ध होना, वो सब महंगे होना। दैट्स वाई आवर साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड वन ऑफ द मेथड्स वेयर वी आर एक्सप्लॉइटिंग यूजिंग द नेचुरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच नेचुरली कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। ये जो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स है, यही ज़मीन के अंदर ये जो क्रॉप्स है, प्लांट्स है, एब्जॉर्ब कर सकते एज ए सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। हमारे क्रॉप्स को सबसे बड़े पैमाने पे लगने वाले जो 16 न्यूट्रिएंट, उसमें से 3 जो है वो है NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। पोटैश बोलते हैं उसको, है ना, पलाश। तो पर्टिकुलरली नाइट्रोजन की बहुत ही कमी हमारे यहाँ सॉइल में होती है। नाइट्रोजन नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी लगता है। तो ऐसी स्थिति में हम माइक्रोब्स का इस्तेमाल सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए कैसे करते हैं? तो देखिए, ये देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने एक चित्र रखा है। व्हाट इज दैट? इफ़ यू सी दैट, आप देख रहे हैं कि ये रूट्स है और रूट्स के ऊपर आप देख रहे हैं ये नोड्यूल्स है, ये इसको कहते हैं नोड्यूल्स, है ना, गांठें हैं सब। ओके, अब ये जो नोड्यूल्स है ये पर्टिकुलरली हमें लेग्यूमिनस क्रॉप, मैं कह रहा हूँ लेग्यूमिनस मतलब जो प्लांट्स के लेग्यूम बनते, फलियाँ बनती है, शेंगा बनता है ना, लेग्यूम्स दे आर कॉल्ड। बता सकते हैं मुझे? सोयाबीन है, उसके बाद में तुअर है ना, फली है मतलब मूंगफली है, ये सारे प्लांट्स फलियाँ बनाते हैं, उनको कहते हैं हम लेग्यूमिनस प्लांट्स। ऐसे डायकॉट लेग्यूमिनस प्लांट के रूट्स पर ऐसे रूट नोड्यूल्स दिखते हैं। ये नोड्यूल्स कौन बनाता है? तो सॉइल में पाए जाने वाले बैक्टीरिया, उनका नाम है राइजोबियम। और ये राइजोबिया रूट्स को इन्फेक्ट करके उनके रूट्स नोड्यूल बनाते हैं और उसके अंदर वो रहने लगते हैं। पर ये राइजोबियम की खासियत क्या है मालूम क्या आपको? ये राइजोबिया जो हवा में नाइट्रोजन है, कितने पैमाने पे है? लगभग 79%। पर ये हवा का नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कहते हैं, वो प्लांट्स एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। पर ये जो राइजोबिया है ना, ये राइजोबिया अपने मदद से नाइट्रोजन का रूपांतर नाइट्रेट्स में NO2 और NO3 में करवाते हैं। और ये दो क्षार जो होते हैं, ये क्षार फिर वनस्पति मतलब क्रॉप्स एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग इस तरह के क्रॉप को अल्टरनेटिव लगाते हैं, या फिर रिसेंटली हम राइजोबियम बैक्टीरिया का कल्चर ज़मीन के अंदर डाल देते हैं ताकि ये राइजोबिया बड़े पैमाने पे मल्टीप्लाई हो जाए। हमने 1 किलो भी डाल दिया पूरे खेत में तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है, बिकॉज राइजोबिया ऑल्सो मल्टीप्लाई, और फिर वो रूट्स में इन्फेक्शन बनाएंगे और नेचुरली हमारे रूट्स को बड़े पैमाने पे हवा के नाइट्रोजन का रूपांतर नाइट्रेट्स और नाइट्रेट में करने वाले राइजोबिया बड़े पैमाने पे मदद करते हैं। जैसे सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए राइजोबियम का इस्तेमाल करते हैं हम, वैसे ही पैडी फील्ड, आपको पैडी मालूम है ना, जिसको हम राइस कहते हैं, तो पैडी तो पूरे पानी में आता है, वहाँ पर राइजोबिया नहीं रहेंगे। राइजोबिया के लिए एरोबिक वातावरण लगता है। वहाँ पर हम इस तरह के नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको हम ब्लू ग्रीन कहते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है नास्टा अनाबिना। ये जो ब्लू ग्रीन अली है बड़े माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ये पानी में रहते हुए हवा का नाइट्रोजन का रूपांतर नाइट्रेट्स और नाइट्राइट पे करते हैं। इनका भी यही काम है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग राइस फील्ड में फिर इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म
पानी में डाल देते हैं और वो हवा का नाइट्रोजन पकड़ के बड़े पैमाने पे नाइट्रेट्स और नाइट्राइट में रूपांतरित करके उस ज़मीन को, उस सॉइल को बड़े पैमाने पे नाइट्रोजन युक्त बनाते हैं ताकि हमारा क्रॉप बढ़े। तो यहाँ पर हमने क्या किया, वी हैव यूज द एबिलिटी ऑफ बैक्टीरिया लाइक राइजोबिया, अजोटोबैक्टर, क्लॉस्ट्रीडिया, हमने बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया ढूंढे हैं। उसी तरह से ब्लू ग्रीन अलगी ढूंढे, कुछ फंजाई भी है जो हमारे सॉइल के अंदर की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए मदद करते हैं। ओके, तो ब्लू ग्रीन अलगी है या फिर नाइट्रोजन फिक्सिंग राइजोबिया है या अजोटोबैक्टर है, दे हेल्प इंप्रूविंग द सॉइल फर्टिलिटी। अब जैसे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए माइक्रोब्स का इस्तेमाल हम करते हैं, और भी एक समस्या हमारे सामने है, वो है क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। हमारे पर्यावरण में बड़े पैमाने पे प्रदूषण होता है, बड़े पैमाने पे हम कचरा डाल देते हैं, और विशेषकर उसके अंदर का जो ऑर्गेनिक कचरा है, मतलब जो कचरे में प्लांट और एनिमल वाले सारे चीज़ें, हम हमारे घर से कौन सी चीज़ें बाहर डालते हैं, देखो आप देखो वो कचरे में, तो उसमें से वो कचरा जो डिग्रेड हो सकता है, जो डिकम्पोज हो सकता है माइक्रोब्स द्वारा, ओके, उनको हम कहते हैं, उस माइक्रोब को कहते हैं हम डिकम्पोजर्स। रिसेंटली हम लोगों ने ऐसे कुछ माइक्रोबियल प्रजातियों का खोज किया है कि जो बड़े पैमाने पे और रैपिडली हमारा जो बड़े पैमाने पे ऑर्गेनिक कचरा, जिसको हम गीला कचरा कहते हैं, उसको सड़ाकर गलाकर उससे उपयुक्त मैन्योर बनाने की, कंपोस्ट बनाने की या वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि हमने प्राप्त की है। सो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दे हैव डेवलप्ड, हमने उनको मॉडर्न तरीके से, हाइब्रिडाइजेशन तरीके से डेवलप किया है, और उससे अभी हम वो बना सकते हैं। तो डेड कैटल, डेड वेस्ट, किसको कहते हैं, कैटल वेस्ट, या कोई प्राणी मर जाता है उनसे मिलने वाला जो मीट शॉप पे जो मटेरियल होता है, वेजिटेबल मार्केट से आने वाला जो मटेरियल है, ये सारे मटेरियल को कलेक्ट करके उसको हम फाइन चॉप करते हैं, और उसके बाद में ये जो माइक्रोब्स हमने बनाए हैं उसका स्लरी बना के मिश्रण करके उसके ऊपर फैला देते हैं। और जो कचरा, जो वेस्ट सड़ने गलने में 4-6 महीने लगाएगा, हमारे इस न्यूली डेवलप माइक्रोब्स की मदद से हम लोग उसको 1 महीने में, 15 दिन में ही कन्वर्ट कर देते हैं बड़े ही वैल्यूएबल मैन्योर में। जो कचरा हमारे कोई काम का न था, बल्कि हमें मिनास, हमको तकलीफ, हमको बीमारियां देने वाला था, उसी कचरे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल कर हम बड़े ही उपयुक्त ऐसे मैन्योर में उसका रूपांतरण करते हैं। राइट, तो हमने हमारे दिमाग से, हमारे बुद्धिमत्ता से माइक्रोब्स के इस क्षमताओं का अभ्यास कर उनको सॉइल की फर्टिलिटी के लिए, हमारे पर्यावरण को स्वच्छ करने के लिए हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारे फ्रेंड्स हो गए, पर हम उनके उस क्षमताओं का इस्तेमाल करते हैं, उनको रोकते नहीं। भाई गड़ाना सलाना आपका काम है, चलो हमारा कचरा जला, हमारे घर पे फूड पे मत ग्रो करो, हमको समझ में आया। तो फूड इज एक्सपोर्ट टू द एयर, एयर में से आने वाले सारे फंगल स्पोर, बैक्टीरियल स्पोर हमारे फूड को स्पॉइल करते हैं, तो वहाँ पर हमको ढक के रखना है, पर हमारे कचरे को उनको एक्सपोज करना है। दैट्स व्हाट वी डू इन क्लीनिंग अवर एनवायरनमेंट। ओके, तो इस तरह से हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल बड़े पैमाने पे हमारे आजू बाजू के वातावरण को स्वच्छ करने में, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने में, मेडिसिन के क्षेत्र में वैक्सीन, एंटीबायोटिक बनाने में, दही दूध बनाने में लिए, फर्मेंटेशन करके अल्कोहल बनाने में लिए, जो अल्कोहल अभी हम फ्यूल करके इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे हाथ को साफ करने के लिए एंटीबायोटिक, एंटी डिसइंफेक्टेंट जिसको कहते हैं, डिसइंफेक्टेंट जिसको कहते हैं, सारे माइक्रोब्स को मारने वाले, हाथ को साफ करने वाला, वो अल्कोहल बनाने के लिए करते हैं। और इस तरह से इफ़ यू गो ऑन टॉकिंग अबाउट द यूजफुलनेस ऑफ दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिक एसिड, विटामिन्स, एंटीबायोटिक, वैक्सीन्स, वेरियस फर्मेंटेशन प्रोडक्ट लाइक जलेबी है, इडली है, डोसा है, हमारे घर के और न जाने कितने सारे चीज़ें फर्मेंटेशन से जो बनते हैं, हम इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड, मैं आपको बता दूं कि देयर आर हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोबियल स्पीसीज, पर्टिकुलरली बैक्टीरिया, विच लिव ऑन आवर बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर भी रहते हैं और बाहर भी रहते हैं, बाहर और अंदर रहते हुए भी हमें वो मदद करते हैं। इनको कहते हैं हम सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, और ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया भी हमारी मदद करते हैं। तो इस तरह से हमने यूजफुल एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा। आज के लिए बस इतना ही। हम अगले पीरियड में हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे है, वो कैसे हमें हार्म पहुंचाते हैं और हम उसे कैसे बचेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ओके, तो मुझे विश्वास है कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा। आप एंजॉय करिए, पढ़िए, बार बार देखिए, और मुझे बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। आपके सवाल होंगे तो आप मुझे यूट्यूब के जरिए मेरे चैनल पर जाके आप सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।